All right. Are we ready? So today we start with lenses. Again, old story, just like mirrors. So today we will be starting with lenses. And as I told you, in lenses, we will be concentrating on convex lens. Whereas when we studied mirrors, we concentrated on concave. Mirrors, we studied concave. Lens, we will be studying convex. Okay? Chaliye. So let's see what is a lens. So lenses are again, yeah, very good evening. So you have spherical lenses. All we will be talking about are not glass slabs out here. We're talking about spherical lenses, and spherical lenses are of two types. We're going to talk about convex lens. A convex lens is a lens which has got its thicker at the middle. This is convex. Okay, convex. And we will have a concave lens, which is like this, thinner at the middle. This is concave. And usually we also get this type of lenses also. Sorry. You'll have a straight line. ऐसे lenses भी आते हैं. आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं. Lenses which are like this, straight line. And here you would have like this. This is called plano-convex. And this is called plano-concave. And just for your knowledge, this is plano-convex. Means one side is plane. And this is plano-concave. ठीक है? हमारी ज्यादातर स्टडी जो है, जितने रे डायग्राम्स हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट विल बी ऑन दिस वन. इसी को पढ़ेंगे. मिरर्स में हमने कॉन्केव को पढ़ा, लेंस में हम कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे सब कुछ. ठीक है, रेडी? और कॉन्वेक्स, कोई भी लेंस कैसा होता है जरा देखो. एक लेंस क्या है? ग्लास से बना हुआ चीज है. सो लेट मी ड्रॉ अ लेंस वंस अगेन. ये मेरा लेंस है, ये ग्लास से बना हुआ है. अगर ये ग्लास से बना हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन होना ही है. कैसा रिफ्रैक्शन होगा? Light comes from what? Rarer medium, so it will bend towards the normal. इसमें bending होएगा ऐसे. ठीक है? So lens में जो भी चीज होता है बेटा, that is because of refraction. अब mirrors को जब हमने पढ़ा था, everything was due to reflection. यहाँ पे refraction होगा. So are we ready? Shall we get into lenses? आइए lenses के terms की definition को. Before we start, आपने लास्ट क्लास की केमिस्ट्री रिकॉर्डिंग भेजी नहीं थी? नहीं भेजी है क्या? नहीं. आजकल सर बुढ़े हो रहे हैं, क्या करूं. अभी मैं बहुत कुछ जुगाड़ कर रहा हूं, रुको. आई एम ट्राइंग टू मेक वन FTP सर्वर आल्सो वेयर यू कैन लॉग एंड टेक आउट द रिकॉर्डिंग as soon as we move to my new classroom. Everything like I'll be making my own hard drive. I'm trying to do that. If that happens, it will help you all. ठीक है, I'll send this. Just give me I've noted. क्लास के बाद भेज देना. कोई और क्लास के बाद ही नहीं, वो रहना भी तो चाहिए ना, उठ तो नहीं गया, वही देखना है. ठीक है, भेज दूंगा. नहीं तो जस्ट एक मिनट दे देना. 1 मिनट देख लेते हैं. अब तुमने बोल दिया तो फिर मन दुखी हो जाता है ना. जस्ट 1 मिनट रहने दो. केमिस्ट्री क्लास व्हेन डिड वी हैव बेटा? 22nd में, परसों. 22nd मई को बहुत सारा ट्रायल रन किया था. अच्छा ये है 22nd में. बच गया तुम है. 27 में ग्रेड 10 केमिस्ट्री. कॉपी शेयरेबल लिंक is copied to clipboard. Then we go to Skype. Where is it? लो बच गया. चलो सही है सर, क्लास के बाद डाउनलोड कर देंगे. ठीक है, लेट्स गो. चलो. Yes, let's get back to our classes now. चलिए अभी lenses के बारे में पहले पढ़ना शुरू करते हैं, किस लेंस में क्या रहता है क्या नहीं. So let's take one lens and start understanding the features of lens. So let me take a dotted line. This is a terminology class. इसमें आप terminologies के बारे में ज्यादा सीखेंगे. And let me take a convex lens. Okay,
This is a convex lens. Now, the center of this lens, वहां पे हम क्या पढ़ते थे? We used to call, you remember what was the name of the mirror? Center of curvature. नहीं, center of curvature नहीं, मिरर के सेंटर को क्या बोलते थे? पोल. Center of curvature is the point from which the mirror has been carved out. See, जब आप मिरर की बात करते हैं बेटा, मिरर तो एक स्फीयर का पोर्शन है ना, एक स्फीयर का, एक फुटबॉल का एक पोर्शन है। वो फुटबॉल का जो सेंटर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से मिरर कर्व हो रहा है। हमने बात की थी मिरर का टुकड़े का सेंटर जो उसे हम पोल कहते हैं, यहाँ पे उसी चीज को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? Write it, make it understand. And we will have one of the imaginary line which will pass through the optical center and it will be perpendicular to both the faces, that middle line of the lens, ऐसे जाएगा। इसको हम बोलेंगे principal axis। जरा डिफरेंस सोचा करो साहेब, वहां प्रिंसिपल एक्सिस था लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है लाइन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस, दोनों लेंस के फेसेस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ठीक है? डोंट राइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। Whereas in mirror we had a center of curvature, यहाँ कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा। आइए फर्स्ट डेफिनेशन जानना शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट डेफिनेशन वुड बी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब देखो तो मिरर के केस में हम सिर्फ फोकस बोलते थे, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस बोला, इसका मतलब एक सेकेंडरी फोकस भी होगा, है ना? फोकस को हमने प्रिंसिपल फोकस बोल दिया। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझ लेते हैं। आ जाओ, कैसा रहेगा फोकल लेंथ? और ये किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं बेटा? ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। Study it for convex lens. Let's try and understand what we are trying to mean. So this is our center line of the lens, right? I think one minute. Okay, so this is my center line and let me make my lens. So my lens is like this and like this. Sorry, if you use protector to draw it, this is the best. Okay, this one. Now let me make my principal axis. My principal axis is passing through this particular point. So this is my principal axis, right? Understood? Where is the optical center? The optical center is here. Here is the optical center. Now our job is just like previous one. Rays of light which are parallel to the principal axis, rays of light which are parallel to the principal axis, when they are incident on what? On a convex lens, they will all converge at one point. They will all converge at one point. इसलिए इसको converging lens भी बोलते हैं, ठीक है? They all converge at one point. And this point where they have all converged, this point is known as the principal focus. इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? Principal focus. This is our principal focus. I chose a wrong color. Replace this. Right. So that's right here. This is my principal focus. And distance, the distance between the optical center and the principal focus is known as your focal length. इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? इसे हम f से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है? अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सर आपने इसको प्रिंसिपल फोकस बोला है, ऐसा है कि क्या कुछ सेकेंडरी फोकस भी होता है? जरा समझो इस चीज को। देखो ये तो एक ग्लास का टुकड़ा है, अब ऐसा थोड़ी है
कि रेज ऑफ लाइट उल्टी साइड से नहीं आ सकती, रेज ऑफ लाइट तो इस साइड से भी आ सकती थी ना, सोचो सोचो, ऐसे भी रेज ऑफ लाइट आ सकती थी। अगर ऐसे हमारे रेज ऑफ लाइट आते तो कहाँ पे कन्वर्ज करते, कुछ यहाँ पे कन्वर्ज कर जाते हैं ना, सोच के देखो, यहाँ पे कन्वर्ज कर जाते। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम सेकेंडरी फोकस कहेंगे। नाउ व्हाई डू वी नॉट यूज दिस वन, we do not use this one because the reason is when you draw your image diagram and you will be doing problems, आपको याद है ना, rays are always taken to travel from left to right, ये हमारी कन्वेंशन है कि हम लेफ्ट से राइट तक रेस को इंसिडेंट करवाते हैं। that's the reason that is known as principal focus, but you cannot deny that there is another focus on this side, इस साइड भी एक फोकस है। इस फोकस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश से। एफ डैश क्या है बेटा, ये हमारा सेकेंडरी फोकस है, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, ये हमारा सेकेंडरी फोकस है। आर वी फाइन ऑन दिस थिंग्स? नाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस is a point on the principal axis at which rays parallel to the principal axis after being incident on the lens get refracted and pass through. और बढ़िया definition करते हैं, आओ इसको। So we are supposed to define what is the principal focus. So we'll write the principal focus. The principal focus of a convex lens is a point on the principal axis, on the principal axis where incident rays parallel to principal axis converge upon, don't miss this word converge, converge upon after being refracted by the convex lens. ऐसा एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां इंसिडेंट रेस, कैसे रेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करते हैं किसके बाद, रिफ्रैक्शन के पश्चात, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज अपॉन, that point is called the principal focus. If you people have been naughty children in your childhood or even now, and you had a magnifying glass in your hand, then you must have tried to focus that sun's beam on some pieces of paper. So what are you doing? You are getting incident ray from the sun, they are coming distant rays, so they are all parallel and they converge upon one point. सारे rays उस point पे converge हो जाते हैं, तो उस point पे बहुत energy आ जाता है और आपका paper burn करना start कर जाता है। Yes or no? You must be aware of this experiment. If you take a convex lens and you try to get the dot on a piece of paper, like the summer that we are having right now in Hyderabad, इसमें अगर आप बीच दोपहर में जाके convex lens से ऐसा कर देंगे ना, हो गया, पेपर जल जाएगा। That is because सूरज से आने वाली सारी किरणें एक पॉइंट पे फोकस हो गए हैं और वही आपका फोकस है, जहां पे आग लग रहा है कागज पे, वही आपका फोकस है। ठीक है? एंड टू फाइंड आउट द फोकस इज वेरी इजी। आप एक कैंडल जला लीजिए, एक टॉर्च जला लीजिए, उसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखिए। सर कॉन्वेक्स लेंस कहाँ मिलेगा? हैंड लेंस, जो आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस रखिए तो आप देखोगे कि पहले रिंग जैसा लाइट आएगा और फिर लेंस को आगे पीछे कीजिए, दैट रिंग विल आइदर कन्वर्ज और एक्सपांड, वो कन्वर्ज करके एक डॉट हो जाएगा। जहां डॉट हुआ वहां से लेंस की दूरी इज द फोकल लेंथ। सिंपल। ठीक है? अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल फोकस। हाउएवर, अगर हम लेंस की बात करें और हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, हमारे पास फोकस नहीं है बेटा, फोसाई है। फोसाई इज प्लूरल, प्लूरल जैसे रेडियस का रेडियाई, प्लूरल ऑफ फोकस। दो फोकस आपके पास है, एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल किसको कहते हैं? राइट साइड वाले को, क्योंकि दिस इज एज पर द कन्वेंशन, हम सीधे रेस को हमेशा लेफ्ट टू राइट लेते हैं, रेज आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरे को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी फोकस।
So now, since you know the mirror formula, you tell me the f of a convex lens. Okay, the f of a convex lens. F means the principal f. The principal f of a convex lens will always be a positive number because you are measuring on the right hand side. ये समझ में आया ये वाला फंडा? ये अभी और नए से नहीं पढ़ाएंगे, ये तो हम मिरर में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम कंसीडर करते हैं. So this, I hope you have understood this part. The principal focus of a convex lens will always be पॉजिटिव, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप इस साइड से उस साइड में मेजर करते हो. ठीक है, डन. एंड लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस will be known as focal length. सेकेंडरी मत लिखिएगा, बिकॉज व्हेन यू से फोकल लेंथ आपने उसको f कर दिया है और वो f पॉजिटिव होगा किसी उस साइड में. ठीक है, इस शब्द को गौर करेंगे, कन्वर्ज. इस कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी होती है बच्चा, इस कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंसेस. कभी कभी आपको प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स नहीं बोलेगा, कन्वर्जिंग लेंस बोलेगा. कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्ज कराती है रेस को. इससे ज्यादा इंट्रो ज्ञान और है नहीं कॉन्वेक्स लेंस में. बताओ कोई बच्चा नहीं समझा हो कॉन्वेक्स लेंस, कुछ भी प्रॉब्लम है? सो कॉन्वेक्स लेंस में हमने सबसे पहले तो लेंस में क्या देखा, ऑप्टिकल सेंटर देखा, प्रिंसिपल एक्सिस देखा. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ द लेंस. प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस बट परपेंडिकुलर टू द फेसेस, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया. कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हमने फोकस को ढूंढा, और वो भी बाय कन्वेंशन. और राइट साइड में जो फोकस आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस. वैसा ही एक फोकस लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, जाहिर सी बात है. रेस कैन ट्रैवल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड एज वेल एज राइट टू लेफ्ट, बट कन्वेंशन ये है कि हम ड्राइंग में हमेशा लेफ्ट से राइट वाली लेते हैं. तो वो बनी प्रिंसिपल फोकस और ये बनी सेकेंडरी फोकस. दोनों फोकस को इकट्ठा कहते हैं हम, बहुवाचक है ना, एक वचन प्लूरल, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फोसाई. दे हैव गॉट टू फोकस, दे आर कॉल्ड फोसाई, प्राइम प्रिंसिपल एंड सेकेंडरी. और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ. और अगर हम कन्वेंशन से जाए तो फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव बनता है, क्योंकि हम दाहिने साइड में मेजर कर रहे हैं. इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं था मुझे. क्लियर? ठीक है, अब आइए यही चीज देखते हैं. और एक और चीज हमने बात नहीं की, ऐसे लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी रे हमें दो हम सबको मिला देंगे. कोई भी रे हमें दो हम सब रेस को मिला देंगे. सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. आइए अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस को. लेकिन याद रहे, ज्यादातर हम किसको पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स को ही पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस. आइए कॉनकेव लेंस बनाया जाए. डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के गाड़ी तो चलेगी नहीं. ये ऐसे, और इसमें हम बनाएंगे कॉनकेव लेंस. एक ठो ऊपर, कैसे बना रहे हो सर? बेकार. एक ऊपर एक नीचे, और फिर ऐसे घुमाइए, और फिर ऐसे घुमाइए. ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस. अब आप इस पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए. प्रिंसिपल एक्सिस को हमने ऐसे बना दिया. ऑप्टिकल सेंटर बनाइए. सर ऐसे बना दिया. आप क्या करेंगे? सर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आइए. चलो ले आते हैं. ये एक रे है, ये एक और रे है, ये एक और रे, और ये एक और रे. अब क्या होगा? अब वही मिरर वाला फंडा होगा. ये रेज अब कन्वर्ज नहीं करेंगे, है ना, ये रेज कन्वर्ज नहीं करेंगे. तो ये क्या करेंगे? सर ये डाइवर्ज आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 नंबरी कर रहा हूँ पहले, ताकि फिगर को मिला सकूं. और 2 नंबरी कुछ ऐसा है कि यहाँ से अब हम क्या बनाएंगे? डॉटेड लाइंस बनाएंगे. यहाँ से they appear to diverge out from here, जैसा हमने
कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था, बिल्कुल वही फंडा यहाँ लगाना है। अब हमारा ये रे कैसा गया, ये रे कैसा गया, ये रे कैसा गया, ये रे कैसा गया। अब जो ये पॉइंट हमारी बनी इसे हम कहेंगे एफ, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। और जाहिर सी बात है एक और फोकस इस साइड भी होगी और इस फोकस का क्या नाम होगा, ये एफ डैश होगा। ये है हमारा सेकेंडरी फोकस और इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्राइमरी फोकस। लेंस क्या है, लेंस कॉन्केव है। तो डिफाइन करें, आइए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं द प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ concave lens is a point, ये सब काल्पनिक है, point on the principal axis, principal axis from where rays parallel, incident rays parallel to principal axis, parallel to principal axis appear, appear to, और शब्द को बड़े से लिखिए, diverge out after being refracted by the concave mirror. Appear to divert out मतलब रेस कैसे है बेटा, ये एक बार देख लो, एक चीज देख लो, आपका रे का एक्चुअल फ्लो पाथ ये है, देखिए रे ऐसे आती है, ऐसे स्ट्राइक करके रे ऐसा हो जाता है, रे ऐसे आती है, ऐसा हो जाता है। इनको जब आप एक्सट्रापोलेट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट किए हैं। They appear to diverge out from this particular point, जैसा आपने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था, ठीक है ना, appear to diverge out। और क्योंकि ये डाइवर्ज आउट वाली शब्द आ गई है इसीलिए एथो लेंस का नाम है डाइवर्जेंट लेंसेस। वो है कन्वर्जिंग लेंसेस और ये है डाइवर्जिंग लेंसेस। ठीक है, और अब हमारी फोकल लेंथ क्या कहलाएगी बेटा, फोकल लेंथ हम इस बार ऐसे मेजर कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड यहां तक, है ना, ये हो गई हमारी फोकल लेंथ। और इसको अगर अब हम मिरर बोल रहा हूं, फॉर्मूला के मुताबिक देखें तो ये फोकल लेंथ हमारा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आप कहां से मेजर कर रहे हो, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, कौन सा, प्रिंसिपल फोकस का, और प्रिंसिपल फोकस के साइड में फोकल लेंथ होता है। तो इसमें लिख लो लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। याद रहे इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड में है, उसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड में होता है। प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर यहां तक? ठीक है, अगर आप पुराने वाले लेंस को देखें तो यहाँ पे फोकस को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो तो, यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट, तो फिर इस फोकस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल फोकस। रेज एक्चुअली मीट, ये रियल फोकस हुआ। और यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हम कहेंगे रेज अपीयर टू मीट, अपीयर टू डाइवर्ज आउट, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। यहाँ पे एक्चुअली कोई रेज हो ही नहीं रहा, ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन वहां पे रेज एक्चुअली मीट करता है।
बताइए, यहां तक कोई डाउट? डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि ये डाइवर्ज करा देता है। यहाँ की एक खासियत है कि इसकी फोकल लेंथ आपको नेगेटिव आएगी, और इसकी फोकस एक वर्चुअल फोकस है, क्योंकि इसके फोकस में कभी कोई रेस का मिलन हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम कॉनकेव की बात, कॉन्वेक्स की बात करें, तो कॉन्वेक्स में तो रेस जाके खुद से घुल मिल गए थे, सब लोग आके एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज किए थे, इसलिए वो कन्वर्जिंग रियल फोकस है, CR, कन्वर्जिंग रियल। और ये है डाइवर्जेंट, DV है ये डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। कितना मिनट हो गया हमारे इस क्लास में? बहुत देर। आधा घंटा। आधा घंटा? अच्छा, आधा घंटा बच्चों ने मौन व्रत रखा है ना, मैं वो देखता हूँ, है ना। और अंग्रेज लोग कहते थे ना, जुबान खोलो, क्रांतिकारी किधर है, हम मुंह नहीं खोलेंगे। हमने यहाँ पे आप जितनी यातनाएं देने, नाखून निकाल लो इनके, फिर भी मुंह नहीं खोलेंगे। गुड। सिस्टर्स। यार मैं ना तेरा वैल्यू समझा साहेब, मैं तुझे डांटता हूँ, पर तेरी वैल्यू मैंने पिछले हफ्ते देखी। तू नहीं था तो क्लास कब्रिस्तान हो गया था, कि यहाँ भूत भी दिख जाए तो भी कोई तो बात करेगा, ऐसे चिल्लाना तो होगा। कुछ नहीं, जानवी ने एक दिन बात किया, वैसे उस दिन, वो तो क्या दिन था उस दिन। मैं बाहर जाके सबसे पहले आसमान में देखा, आज तारों का कॉम्बिनेशन क्या है, क्या कोई ग्रह दिख रहा है। दर्शिका ने कहा नहीं, क्लास में जानवी बहुत बात करती है। मैंने कहा पता नहीं, हमारा मुंह ही शायद खराब है देखने में, हमारे साथ बात नहीं। जानवी पहले जब ज्वाइन की थी ना, आई थिंक एट दैट टाइम आप लोग कोई भी नहीं थे, हाँ शी वॉज देयर। तो जानवी पहले जब ज्वाइन की, एट दैट टाइम जानवी यूज्ड टू टॉक, फिर ना एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह धीरे धीरे हमारी बच्ची ने जुबान खो दी, फिर वो जुबान बंद हो गई। वो था ना भूल भुलैया, देखे हो पहला वाला, उसमें गिरिजा की बेटी की जुबान चली गई, महल का ताला खोल दिया था, उसके बाद से जुबान है। लास्ट हफ्ते में साहब, ये तो ऐसा था ना, मैं तुझे कितना मिस किया, मैं क्या बोलूं। इसलिए नहीं कि तू बड़ा अच्छा प्यारा सा बच्चा है, इसलिए कि बात करने वाला कोई तो था, है ना? और इसने भी बात की, आर्यमन ने भी एक दिन बहुत सारा बात किया, और खूब हंसते रहता है, उसको हंसी है। ये बच्चे को क्या, ये वो हमारी बात सुन सकते हैं? हाँ, फीलिंग्स है ना, हंसते हैं ना, सिर्फ जुबान नहीं खोलते हैं। जुबान केसरी। ठीक है, आइए चलिए अब हम सीखेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रूल्स। और अगर आपने मिरर का रूल याद रखा है, यहां भी इजी हो जाएगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअली दर्शिका बात करने वाली है, दर्शिका को क्या हो गया ना, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इनके बीच आके ये चुप हो गई है। दर्शिका को हमारे एक बैच डाउन करके 9th क्लास में अगर ले जाऊं ना, तो वो वहां बात करेगी। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। साहेब क्या है, एक हफ्ते के लिए चला गया, क्लास मानो सूना हो गया, जुबान बंद हो गई थी सबकी। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और हम किसके बारे में देखेंगे? हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। हमेशा याद रखिए, लेंस में हम कॉन्वेक्स को ही ज्यादातर पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आ जाइए रूल्स देखते हैं। और रूल्स को लिखने के लिए पहले एक डायग्राम बना लूं, क्योंकि डायग्राम तो बार बार काम में आएगा, तो पहले डायग्राम रेडी करते हैं। ट्याओ, ट्याओ के ऊपर ट्याओ। ठीक है, और फिर बनाते हैं इसका। सर मम्मा आ गई। मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी बोल रही है कि सर बच्चों को मार्क्स भी बता देना, आपके प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स ने कितने स्कोर किए। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी तो उससे रोटी खाने दीजिए, अभी भी वो ब्रेड और बर्गर के नशे में है ना, हफ्ता बढ़ गया है, अभी भी वो ब्रेड एंड सैलड्स एंड क्या है, ऑलिव ऑयल में खा रहे। तो सरसों का तेल पच रहा है तेरे पेट में अभी, है ना? मैसेज पे तो आपने भेज दिया था, बट उनको फॉरवर्ड नहीं किया गया है अभी। हाँ, इनको फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि आपसे आजकल मैं देखा हूँ, प्रोत्साहन से बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर जिल्लत से, दो में से एक में काम करेंगे, है ना? राइट हो, थैंक यू ज्योति जी। ठीक है, सो इसको क्या करेंगे, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सेस, ये ठीक है। इसके मैं 2-3 क्लोन कर लूं, क्योंकि इसी के रूल्स इसके ऊपर ही बनेंगे, तो इसके ऊपर क्लोन करके एक और क्लोन कर लेते हैं, 3-4 रख लेता हूँ, और क्लोन एक और। चलिए,
इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट विद रूल नंबर 1। लिखूंगा नहीं, रूल नंबर 1 ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। तो मेरा रूल नंबर 1 ये कहता है, ठीक है, पहला रूल देखिए, पहला रूल बिल्कुल मिरर के जैसा है। मिरर में क्या था, मिरर में रिफ्लेक्ट होके आता था, यहाँ रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो सारे लेंसेज में ये बना लो भाई। क्या एक और चीज रह गई थी, फोकस बनाना जरूरी है। दो तरफ दो फोकस है, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी, और सेकेंडरी एक प्राइमरी। इनको नाम दे देते हैं। प्राइमरी को हमेशा एफ लिखिएगा, सेकेंडरी को एफ डैश लिखिएगा। ये हो गया एफ डैश और ये हो गया एफ, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ डैश, ये हो गया एफ, और ये हो गया एफ डैश, ये हो गया एफ। ऑप्टिकल सेंटर को भी मत भूलिएगा भाई साहब, ऑप्टिकल सेंटर में भी बिंदी लगा दो एक एक, है ना, इसमें भी बिंदी लगा दो। ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर हो गए, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर में नाम चरानी है तो नाम भी चरा दो, वो हो गया सारा ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे पी डालते थे पोल के लिए, यहाँ पे ओ डालेंगे, ठीक है। चलिए पहला रूल, पहला रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और हमारी रेस हमेशा लेफ्ट से राइट ही आएगी क्योंकि वही कन्वेंशन है ना, हमारी रेस लेफ्ट से राइट। तो अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, वही वाला कानून, वही गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे, रे पैरेलल टू पीए क्या करेगा, विल पास थ्रू फोकस। क्लियर, ठीक है ना, बहुत ही आसान। अगला रे इसी का उल्टा, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ही इजी। आइए दूसरा वाला कानून, रे पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीन ही कानून है, चौथा वाला ऐसे ही लिया, तीन गोलगप्पे में ही आउट है। A ray passing through the optical center goes undeflected, वहां हमने पोल पे देखा था कि पोल पे जिस एंगल से आता है वही एंगल में वापस। तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये कानून नंबर 3 है हमारा, कानून नंबर 3। रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। अनडेविएटेड कोई वर्ड नहीं होता, डज नॉट डेविएट, अंडरगोज नो डेविएशन, नील डेविएशन। बस ये तीन कानूनी है, इसमें चौथा कुछ है नहीं। चौथे वाले को अगर बनाए हो तो मिटा दो भाई, ठीक है। बस, और क्राइटेरियाज वही रहेगा। क्या क्या क्राइटेरियाज है बेटा, बिटवीन एफ एन पोल रहता था, बिटवीन एफ एन ओ, एफ, एट 2f एंड बियॉन्ड 2f। बस यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मत बोलना है यहाँ पे, हाँ यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, यहाँ पे 2f बोलना है हमें, 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम की कोई चीज इसमें तो है ना भाई साहब, समझ में आया रूल, तीन रूल। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडिफ्लेक्टेड। किसके लिए ये सब भाई साहब, ये सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्वेक्स लेंस के मिरर इमेज फॉर्मेशन के अलग अलग किस्सों को देखते हैं। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। सर इमेज फॉर्मेशन भी होता है लेंसेज में? हाँ तो नहीं होगा, तुम्हारी आंख में तुम चश्मे से कैसे देख रहे हो, इमेज फॉर्म होना पड़ेगा ना। ये कैसा सवाल था, कैमरा में इमेज नहीं होगा तो कैमरा डेवलप कैसे करेगा, इमेज फॉर्मेशन। और यहाँ पे भी आपको वही करना है, पोजीशन के बारे में बात करना है, नेचर के बारे में बात करना है, रियल वर्चुअल मैग्निफाइड पोजीशन क्या है और नेचर बात करना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, हम कॉन्वेक्स को ही ज्यादा पढ़ते हैं, कॉनकेव को नहीं पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को नहीं पढ़ते। तो आ जाओ इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है,
अगर आप मिरर को याद रखेंगे ना, आपको बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। पहला हमने क्या देखा था, बिटवीन पोल एंड फोकस, उसमें क्या आया था, दैट वाज द ओनली इंसिडेंट वेयर वी गॉट अ वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, डेंटिस्ट वाला, लिपस्टिक वाला, शेविंग मिरर वाला, अगर आप याद करो, याद है? एक ही बार आपको वर्चुअल आया था और एक ही बार मैग्नीफाइड आया था, इरेक्ट आया था। यहां भी वैसा ही होगा। सबसे पहला हम कहां पे लेंगे, सबसे पहला हम लेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। आइए, आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं बिटवीन फोकस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट को भी एक नाम दे दो। ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है सर, नीचे वाला पोर्शन ए है, ऊपर वाला पोर्शन बी है, ठीक है। तो आइए रेस बनाते हैं। पहला रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा, कहां से गुजरेगा बेटा, फोकस से गुजरेगा, कोई डर नहीं है इसमें। और दूसरा रे कैसा है सर, सर दूसरा रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। अब ऑप्टिकल सेंटर वाले रे को हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर वाले रे को तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये रे यहाँ से आ रहा है, ऐसे दिखाया है। और ये वाली जो रे है, तो पहली वाली रे है, इसे हम करेंगे एक्स्ट्रापोलेट। और कहां पे मिलन हुआ, यहां मिलन हुआ, ठीक है। राइट, वैसे है, ठीक है। इवन इन सम बुक्स यू विल फाइंड this portion also, what you call this portion also shown in dotted. So if you want, you can show this also in dotted, nothing big deal. Show this also in dotted, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा आपका इमेज। सर डॉटेड लाइंस बस रेफरेंस के लिए होता है। डॉटेड लाइंस एक्स्ट्रापोलेशन के लिए है, एक्चुअली वहां से आई नहीं थी, ये आपका मन का भ्रम है और उसको आप क्लियर कर रहे हैं। तो अब इस इमेज को क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है। आइए लिखते हैं इसके बारे में। नंबर 1 क्या बनेगा, इमेज का पोजीशन डिक्लेयर कीजिए। इमेज कहां पे है, बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड फोकस। और क्या क्या देख रहे हैं आप, वर्चुअल है। और क्या देख रहे हैं आप, मैग्नीफाइड है। यही तुम्हारा हैंड लेंस का प्रिंसिपल है। हैंड लेंस में हम जिस चीज की तहकीकात करते हैं उसे हम लेंस के पास रखते हैं। दैट मीन्स इट इज बिटवीन द फोकस एंड between the focus and the optical center. Like my चश्मा, I am using plus power. अगर मैं खोल के ऐसे ऐसे करूं ना, मुझे भी बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। और वर्चुअल है, एक वर्ड तो लिखना भूल गया, इरेक्ट भी है। इरेक्ट है, मैग्नीफाइड और लार्जर देन मैग्नीफाइड।
ठीक है, क्लियर, इसमें कुछ खास बात तो है ही नहीं। अब अगला वाला सीन देखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। याद करो मिरर में फोकस पे होने से क्या होता था, इंफिनिटी पे बनता था हमेशा, फोकस माने इंफिनिटी पे जाके बनेगा। आइए ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं एट फोकस। कैसे, एट फोकस, ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी रेस कैसी बनेंगी, a ray which is parallel to the principal axis passes through the focus after refraction। कोई बात नहीं सर, ये तो समझ में आ गया। ये हमारा ए, सॉरी नीचे वाले को हम ये बोल रहे हैं ना, अपने कन्वेंशन मेंटेन करते हैं। ये हमारा ए और ये हमारा बी। एंड a ray of light which passes through the optical center goes undeflected। ठीक है, पैरेलल। और ये रेस कहाँ मीट करेंगे हमें नहीं पता, ये हम लिखेंगे that we will write image at infinity, image at infinity। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 1 इमेज एट इंफिनिटी। नंबर 2 क्या लिखेंगे, रियल इमेज है, कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक करेगा। और क्या है, इन्वर्टेड है, बाकी सब इन्वर्टेड आएगा। और तीसरा क्या लिखे, हाईली मैग्निफाइड, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। हाईली मैग्निफाइड। एक्चुअली इफ यू टेक योर हैंड लेंस, आप घर में करके देख सकते हो, बुक के ऊपर रखोगे ना बेटा, बुक की राइटिंग सीधी सीधी आएगी। थोड़ी दूर ले जाओ अपने लेंस को, जैसे मेरा ये चश्मा है ना, इसको दूर से अगर मैं कोई राइटअप को देखूं ना प्लस पावर वाले साइड से, वो मुझे उल्टा दिखता है। समझ में आ रहा है, वो आपको उल्टा दिखेगा। समझ समझ के लिखिए, फोकस पे होने से इंफिनिटी पे जाएगा। इसी का उल्टा तो तुमने कागज जला के किया था, इंफिनिटी के रेस को फोकस पे फोकस किया था। अब फोकस से रेस ओरिजिनेट हो रही है तो वो कहाँ चली गई, इंफिनिटी पे चली गई। सर एक बार ऊपर जाओ। बिल्कुल जा रहा हूँ बेटा, 1 मिनट दे दे। चलिए तीसरा वाला, 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, बना लो आप, जब हो जाए बोलना। डन डन डन। चलिए थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड केस में हम क्या देखेंगे, थर्ड केस में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f।
FN2F में होने से मिरर में क्या होता था, उल्टे साइड मिरर में बनता था FN2F, तो बियॉन्ड 2F आपका आता था। यहाँ भी वैसा ही आना है, बियॉन्ड 2F आएगा और बड़ा आता था, यहाँ भी बड़ा आएगा। F and 2F, 2F कहाँ पे है हमारा, 2F हमारा यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, बिटवीन F and 2F। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है, यहाँ, ठीक है। रूल क्या कहता है, रूल कहता है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, जाहिर सी बात है पास कर गया, and a ray of light through the optical center goes undeflected, ठीक है, passes through the focus and a ray of light through the optical center goes undeflected, ठीक है। तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी सर, हमारी इमेज तो बहुत दूर बनी है। और कैसी बनी है सर, इमेज हमारी तो बनी है मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2F, और क्या, और हम कहेंगे रियल इन्वर्टेड, और हमारी ये इमेज रियल इमेज है, सॉरी रियल इमेज। So if you call this as AB, this is A dash and B dash. And what is this? This point will be known as 2M. तो आइए इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा नंबर 1, image is formed beyond 2F। दूसरा मैग्नीफाइड है, और क्या है, इन्वर्टेड है, और क्या है, और रियल है। इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F, मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है, और रियल है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा कहां पे, बिल्कुल 2F पे, मींस इट इज लाइक ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। आइए लिखूं अगला वाला। अब तक हमने कितने देख लिए हैं, 1 2 3 देख लिए, 3 देख लिए। अब चौथा वाला, चौथा वाला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F। 2F में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ये 2F, ये भी 2F, ठीक है। आइए now we are placing the object at 2F। ऑब्जेक्ट is placed at 2F, और इसमें यहाँ भी 2F, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। सेम कंडीशन, one ray which is parallel to the principal axis will pass through the focus, ठीक है, and a ray of light which passes through the center of picture goes undeflected। थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, pardon me for that, क्योंकि इमेज तो फॉर्म होएगा बिल्कुल
सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज फॉर्म करवा लेते हैं। ये इमेज है और ये है 2f। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इमेज एट 2f, फिर क्या लिखेंगे? सेम साइज, फिर क्या लिखेंगे? इमेज इज एट 2f, फिर लिखेंगे रियल है एंड इन्वर्टेड है। इमेज सेम साइज की आएगी। लास्ट वाला हम देखेंगे, जब हमने क्या किया था, हमने f और c के बीच में लिया, c तो है नहीं, f और 2f के बीच में लिया था, तो इमेज कहां पे फॉर्म हो गया था? f एंड 2f के बीच में लिया था। f एंड 2f के बीच में लेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होता है? f एंड 2f, बियॉन्ड 2f फॉर्म हुआ था। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f पे रखेंगे। आइए, ये लास्ट वाला है। दिस विल बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस वन। ये नंबर 3 का ऑपोजिट देखेंगे अभी हम। ठीक है, और इसमें है ऑब्जेक्ट। सर एट 2f का क्या क्या प्रॉपर्टीज था फिर से? एट 2f का सेम साइज, उल्टा, यानी कि नो मैग्निफिकेशन, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अब आपका इमेज कहां फॉर्म होना चाहिए? बिटवीन f एंड 2f। देखते हैं। बियॉन्ड 2f, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको a, इसको b, इसको 2f, तो लगाते हैं वही रूल। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। ठीक है, and a ray of light passing through center of curvature अब आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? हमारा इमेज तो यहाँ पे फॉर्म हुआ, and this is exactly between f and 2f। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। और इमेज कैसा आया है? ऐसा। इसमें क्या क्या लिखेंगे? image is formed between f and 2f। नंबर 1, इमेज कैसा है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर इन साइज है। स्मॉलर इन साइज, खत्म। Right, 4 criterias. First criteria, second criteria, third, fourth, and this is fifth. So this one is of no use, we did not use this. One, two, three, four. This should be written as 5.
when object is placed beyond 2f, image is formed between f and 2f. So formed between f and 2f, real and inverted and diminished, है ना? सभी मिरर है, सारे के सारे रियल इन्वर्टेड है. एक ही बार इरेक्ट हुआ था, जब आपने इरेक्ट इज ऑलवेज समथिंग ऑफ ह्यूमन नीड में आएगा. देखो जब आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज आया था किसमें, मिरर में, तब क्या था, तब आपका डेंटिस्ट वाला मिरर एंड ऑल दोस ब्यूटी मिरर्स. अभी इरेक्ट इमेज आ रहा है कहाँ पे, योर इट इज कमिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया. और लास्ट एक और हमने नहीं देखा था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. इसके भी दो ड्राइंग होते हैं, कोई भी एक प्रेफर करने से ही हुआ. नंबर 6 इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सर इसका यही ना कि ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट फोकस. हाँ, फोकस, यही तो काम है सूरज की रोशनियों को जो आप लगाते हो. अब सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है कि हम जो रेज लेते हैं ना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में, तो एक रे तो आप ऐसा ले लो, कैसा, रे विच इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे हम कैसे लेंगे, यहाँ से लेंगे ऐसे, ये दूर से आ रही है हमारी. सो रे विल बी पैरेलल लाइट, पैरेलल रेज. One minute actually. This is object. Object is at infinity. तो हमारे रेज कैसे आएंगे, रेज हमारे पैरेलल आएंगे और एक रे तो सीधा सीधा गुजर जाएगा सेंटर पे, और दूसरा रे भी ऐसे ही पैरेलल आ रहा है. इसको आपको दर्शाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है. सॉरी, तो इमेज में ना कहाँ पे बनेगा, फॉर्म दैट फोकस. सर एक पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऐसे नहीं, इसको पैरेलल क्यों नहीं दिखाते हैं. अगर मैं पैरेलल ले लूं ना तो ये वाला डायग्राम बनेगा. ये देखो कन्वर्जिंग लेंस का डायग्राम बनाया था ना ये, तो इसमें हम इमेज की हाइट को नहीं दिखा पाते हैं, इसीलिए इसको आपको दर्शाने के लिए इसको पैरेलल को इस तरह से लिया जाता है. नहीं तो आप इमेज हाइट नहीं दिखा पाओगे, थोड़ा सा इमेज हाइट दिखाना पड़ता है. तो यहाँ हम क्या क्या बोलेंगे, यहाँ सबसे पहले हम बोलेंगे नंबर 1, image is formed at focus. ये इमेज कैसा है, ये इमेज हमारा है रियल. और कैसा है सर, ये इमेज इन्वर्टेड बनेगा. और क्या है, ये इमेज हाईली डिमिनिश्ड बनेगा. पहले टेलीस्कोप में हम ऐसे 2 लेंस यूज करते थे साहब. देख, दूर के यूरेनस को पहले हम फोकस में लाएंगे, उस लेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है. ठीक है ना, एक छोटा सा इमेज फॉर्म हो गया, हमें वही तलाश थी. अब इस एक और लेंस यहाँ पे बैठाएंगे, उस लेंस से क्या करेंगे, उस लेंस से इस पर्टिकुलर, देखो ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, अभी आपको, आप टेलीस्कोप बना रहे हो तो आपको करना क्या है बेटा, हमें यहाँ पे एक और लेंस लाना पड़ेगा ऐसे. इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव. इस तरह से कि इसका फोकस यहाँ पे हो, इसका फोकस यहाँ पे हो, तो सर क्या हो जाएगा, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिना ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी इमेज, और ये ऐसे बनेगा. यही आपके फील्ड टेलीस्कोप्स का यही रूल है, लेकिन हम उसमें मिरर यूज करके फिर सीधा कर देते हैं. अगर आप जैसे हाईवे वगैरह जब कंस्ट्रक्शन होता है, देखना एक आदमी ऐसे देखते रहता है, दैट्स कॉल्ड अ फील्ड टेलीस्कोप. इन अ फील्ड टेलीस्कोप यू विल सी एवरीथिंग उल्टा, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ टेलीस्कोप. आज के जमाने के मॉडर्न टेलीस्कोप क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव को ये लोग और ये यूज नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, लेंस यूज नहीं करता है. मॉडर्न टेलीस्कोप इसको क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर देते हैं. कॉनकेव मिरर भी एक इमेज बनाएगा,
अगर आप इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हो। फिर ये इसको कहते हैं हम आईपीस। इसलिए देखना जो टेलीस्कोप देखता है ना उसके पास एक बॉक्स रहता है, अलग अलग आईपीस रहता है। सो एक बार उसने फोकस कर लिया ना, फिर जस्ट आईपीस बदलते रहो और बड़ा या छोटा करते रहो या फिर देखते रहो। ये हो गए आपके सारे जितने ऑब्जेक्ट्स के सीधा रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। एक खरीद के एक्सपेरिमेंट कर सकते। हाँ कर सकते हो, सेलेस्ट्रॉन के टेलीस्कोप खरीद सकते हो, 19 अच्छे वाले बहुत आरित के पास है ना यहाँ पे, मैंने फिट किया था उसका वाला, दैट कॉस्टेड एट दैट टाइम हाउ मच, सम 21 और 22,000। सेलेस्ट्रॉन वाले अच्छे होते हैं, but it depends how your balcony of your house is. If your house balcony faces aside, तुम्हें अच्छा है, तुमको तो टेरेस है ना, 1 मिनट में, टेरेस से बेहतर और कुछ नहीं है। तो अगर आपको आर्बिट्रीली कोई कॉन्वेक्स लेंस का कहता है फोकल लेंथ डिटरमाइन करो, कुछ नहीं, लाइट जला दो, पीछे लेंस ले आओ और लेंस को धीरे 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 मूव करते करते ऐसे एक जगह पे ले जाओ ताकि आपको क्या दिखाई दे, आपको डॉट दिखाई दे। तो डॉट से वहां तक की दूरी को हम फोकस कहते हैं। अब आ गए हम कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस पे, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के इसके बाद प्रॉब्लम्स आएंगे। कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस, और यूजेस क्या क्या है? नंबर 1 स्पेक्स बनाने में काम में आता है, नंबर 2 टेलीस्कोप के काम में आता है, फिर माइक्रोस्कोप के काम में आता है, फिर कैमरा के काम में आता है, बहुत जगह काम में आता है, फिर हैंड लेंस बनाने के काम में आता है, ज्योतिषी लोग जो देखते हैं, बेटा राहु का प्रकोप है तुम्हारा और उसके बाद दशा बहुत खराब है, अर्थ संचय में कमी है, ब्ला ब्ला। Do you understand? And then you get some small problems on F and F, all F. Sign convention remains the same, though we will learn, but what we will learn next in our next classes will be the lens formula. और लेंस के लिए मैंने आपको बोला था लेंस को कैसे याद रखने का, लेंस में है E और नेगेटिव के शब्द में है E, तो लेंस में माइनस आता है, एडिशन में I, मिरर में I, तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, कौन पहले आता है सर, VIP, V पहले आता है, 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। और यहाँ पे एक चीज आपको और गौर करनी है कि मैग्निफिकेशन का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट अवे, वहां था -v/u, यहाँ पे v/u, या फिर आप कह सकते हो h2 यानी कि h ऑफ इमेज ओवर h ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म। साइन कन्वेंशन वही कन्वेंशन, पर एक चीज ख्याल रखिएगा, यहाँ फोकस पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल फोकस का से ही फोकल लेंथ मेजर होता है, और वो फोकस कहाँ है, उल्टे साइड में है। That is the only thing you need to remember. While we do get problems, it will become easy. तो यहाँ तक आप क्लियर हो जाइए। Actually, we have again come to a section where question answers have come. So, like say, suppose these type of questions. Where should an object be placed so that a real or inverted? Real inverted बोलते ही वो डेंटिस्ट वाला के हैंड लेंस वाला केस तो नहीं होगा। Real and inverted image of the same size. Same size मतलब 2f पे प्लेस करना है तो same size मिलेगा। A convex lens has a focal length of 20 centimeters. Very good. Where should be the object be placed so as to find an image which is same size? So उसको कहाँ प्लेस करोगे? आपको 40 सेंटीमीटर में प्लेस करना पड़ेगा। सेम साइज मतलब क्या, 2f होना है, अगर f आपका 20 है तो 40 पे प्लेस करेंगे हम। एक और क्वेश्चन है, an object is placed at following distances of focal length 10 और focal length is 10, इसमें मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं चाहिए, जस्ट सोचो, आंखों में एक लेंस सोचो बेटा जिसका फोकल लेंथ है 10, फोकल लेंथ 10 का मतलब क्या है बेटा,
ये साइड में भी 10 की दूरी, यहाँ पे भी 10 की दूरी। अभी आपको बोल रहा है 8 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओके 8 सेंटीमीटर में रखेंगे, विच पोजीशन, हमारे पास ऐसे कुछ पोजीशन है 8, 15, 20 और 25। आप खुद ही आंसर दो। आपको चाहिए डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज कहां पे होता है? इफ यू पुट इट बियॉन्ड 2f, यानी कि 25 में आपको आएगा डिमिनिश्ड, बिकॉज दिस विल बी 20 ना, ये 20 पे होगा। नेक्स्ट आपको पूछा है मैग्निफाइड रियल इमेज। मैग्निफाइड रियल इमेज होना है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करना है, यानी कि किस में प्लेस करोगे? 15 पे। फिर बोला है मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, 8 पे प्लेस करोगे, यहाँ प्लेस करोगे तो मैग्निफाइड वर्चुअल। और फिर बोला है इमेज ऑफ द सेम साइज, इमेज ऑफ द सेम साइज मींस 20 में प्लेस करोगे। दैट्स इट। These problems do not, however, use any sort of formulas. They are only based upon the image diagram. Understood? Rest of the things we will catch up in our next class, where we will be doing problems based on the lens formula, and we will be talking about what is their nature, image, and all these things. ठीक है? क्या है साहब, नेटफ्लिक्स में कौन सा सिनेमा आया वो देख रहे हो क्या? नहीं सर। अच्छा, कुछ तो पढ़ रहे थे तुम बड़े चाव से, राइट? चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। Until then, bye bye and see you on our next class. चलो, थैंक यू सर। Righto. Thank you and thank you.